Hello everyone, once again I am here with my new video on the topic electrostatic potential. In previous videos I have explained about electrostatic field lines, everything about the chapter 1. Now from today I am going to start the chapter 2, that is electrostatic potential. If you like my video, then please like and subscribe my channel. Now electrostatic potential. What is the basic meaning of potential? Potential means what? Capacity, inability of you. Electrostatic potential now means potential of electric. Now what is electric? Electric charge, the potential of electric charge. Now electrostatic potential is actually the scalar representation of your electric field. Now what is electric field? That we have explained in detail in the previous videos. And electric field have a number of representation. One was the mathematical form, that is known as electric field intensity. One was the pictorial representation, that we called the electric field lines. The space of the charge is known as electric field. That was all about electric field. Now electrostatic potential means it is the scalar representation of electric field. Now what is the first point we have to remember about the electrostatic potential? That it is the scalar representation of electric field. अब यहाँ से this one is clear, this thing is clear that what electric potential is what? It is a scalar quantity because it is a scalar form of the electric field. Actually, as the chapter will progress, we will see that D is equal to minus dV by dr, which we call the potential gradient. This was the equality relation. This electric potential is scalar quantity, but potential gradient is the vector quantity. Now what is potential gradient? It is the change of potential with respect to position. That is called potential gradient. Now what is the mean? That in the direction in which the electric field is increasing, in that direction it is decreasing. I will discuss these things in detail, but here we will first discuss in detail what is the meaning of potential. पहले हम उसको समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे one by one. Jump नहीं करना है. So next thing is what? It is a scalar representation of electric field. करने का मतलब है कि ये quantity जो है ये पूरी तरह से क्या है आपकी scalar quantity. दूसरा, ये क्या दिखाता है? It gives you the degree of electrification. डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन कहने का मतलब कि किसी मीडियम के किसी पॉइंट पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज ऑब्जेक्ट को प्लेस करना चाह रहे हैं, तो हमें कितनी एफर्ट देनी पड़ेगी, कितना हमें मेहनत करना पड़ेगा. अब है क्या मेहनत, इसमें फिजिक्स के सेंस में हम किस रूप में करते हैं? व्हाट वी पुट एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, कि हमें कितना वर्क डन करना पड़ा. दैट इज कॉल्ड द एफर्ट. एक्चुअली वर्क डन इज व्हाट? वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. नाउ फोर्स इज बेसिकली एफर्ट इन ऑल लैंग्वेजेस. सो हमें कितना करना पड़ा और ये किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द इलेक्ट्रिफिकेशन. तो इसको सेकंड पॉइंट हम क्या कहेंगे? इट एक्सप्लेन्स द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन. ठीक है. थर्ड पॉइंट देखो क्या है? इट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. Now in previous chapter the charges were at rest. In previous chapter what we have discussed? Electrostatics. The name is what? Electrostatic. Now again it is also the electrostatic potential, but you know that we need current also in our day to day life. हमें current की भी जरूरत होती है. तो current कैसे मिलेगा? Static charges से current मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. It means what? कि current के लिए हमें charge को flow कराना पड़ेगा in a particular direction. इसीलिए that is why we supply the battery to the electrical सर्किट. मालूम है आप सबों को कि इलेक्ट्रिक सर्किट में हम बैटरी जोड़ते हैं और बैटरी का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करना. याद करो क्लास 10th में हमने पढ़ा था कि करंट फ्लोज ड्यू टू द डिफरेंस इन पोटेंशियल. ये वही पोटेंशियल है जो हमने वहां डिस्कस किया था. थोड़ा इसमें हम डिटेल पढ़ेंगे कि पोटेंशियल एक्चुअली होता क्या है. व्हाट इज पोटेंशियल इज, व्हाई डू वी नीड द पोटेंशियल डिफरेंस to be applied in the circuit to flow the charges from one point to another point. Now it means what? That potential determines the direction of flow of charges. ये क्या करता है? तो flow
डिटरमाइन करता है। अभी फ्लो कैसे होगा? इट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो मैं थर्ड पॉइंट क्या लिखूंगी? दैट इट डिटरमाइंस the flow of, sorry, not only flow, it determines the direction of flow. It is the direction of flow, not only the flow. It determines the direction of flow of charges. It determines the direction of flow of charges. That is what? Charge flows from higher potential. Charge flows from higher potential to lower potential. Did you got my point? That is, charge flows from higher potential to lower potential. This is what is the intro. इस potential क्या है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स का एक तरह का स्केलर रिप्रेजेंटेशन है जो कि क्या करता है? It tells that what will be the direction of flow of charges. कहने का मतलब है कि अगर चार्ज को सर्किट में फ्लो करना है तो इसके फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी? लोअर टू हायर होगी या हायर टू लोअर होगी? ये हमेशा कैसे फ्लो करता है? higher potential to lower potential. In the same way, like the water flows from high level of tank to the low level of the tank. That was the same pattern of the potential also. अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इसको अब हटा देते हैं। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मैं एक टर्म जोड़ती हूँ और उसके बाद में पोटेंशियल। देखो, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर पॉइंट का अगर मेजर करना हो तो दैट इज नॉट पॉसिबल। आप पोटेंशियल को मेजर नहीं करते हैं, आप एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। किसको मेजर करते हैं आप? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। मैं वन बाय वन क्लियर कर रही हूँ हर चीज, हर पॉइंट्स को। पोटेंशियल डिफरेंस को आप मेजर करते हो और उसके बाद क्या करते हो? जो कि डिफरेंस टर्म जो है, इट इज बिटवीन द टू पॉइंट्स। जब भी हम डिफरेंस की बात करेंगे तो वो हमारा जो होगा वो हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में होगा। फॉर एग्जांपल, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ये ए और बी के बीच में डिफरेंस होगा। अब हम शिफ्ट करते करते ए को मान लेते हैं कि ये मेरा चला गया है कहाँ पे? तो इन्फिनिटी पे। ए क्या हो गया है? इन्फिनिटी पे हो गया है। तो इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल की वैल्यू लेते हैं 0। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल की वैल्यू हम लेते हैं 0। कैसे? मैं ड्राइव करूंगी इसको, हाउ इट इज कम्स 0। सो इन्फिनिटी पे ले लिया पोटेंशियल की वैल्यू 0, तो इट मींस व्हाट? कि अगर दो पॉइंट्स का डिफरेंस लिया पोटेंशियल का, किसका किसका? VB माइनस VA इज इक्वल टू कुछ होगा, मान लो कुछ होगा, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी दे दो, मान लेते हैं कि x होगा। सो नाउ व्हेन द A becomes infinity, then what will happen? VB is equal to x। आई बात समझ में? तो ये पॉइंट क्या हो गया? एक्चुअली डिफरेंस इन पोटेंशियल एक पर्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल डिफाइन कर दी। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल हैज डिफाइंड द पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड B। बट हाउ वी कंक्लूड टू द पॉइंट, हाउ वी केम टू द पॉइंट B? इट इज फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। कहने का मतलब ये है कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस को समझना है और उसको समझने के लिए हम एक फिजिकल मेजरेबल टर्म यूज करेंगे, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी समझाऊंगी और उस पोटेंशियल एनर्जी से, आई मीन कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की तरफ बढ़ेंगे। अब जरा समझिए कि क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल। देखिए, एनर्जी मीन्स व्हाट? एनर्जी मीन्स एबिलिटी टू डू वर्क, ये हम लोग सब जानते हैं। अब ये आती कहाँ से है? हमारे अंदर कुछ काम करने की क्षमता है। सपोज वी आर एबल टू परफॉर्म सम वर्क, इट मीन्स दैट वी हैव गेन्ड। नाउ व्हाट वी हैव गेन्ड? वी हैव स्टोर्ड सम अमाउंट ऑफ वर्क डन। द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हिच इज स्टोर्ड एट अ पॉइंट, दैट इज नोन एज आवर पोटेंशियल एनर्जी। जो कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि एनर्जी ड्यू टू द रेस्ट, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो इसको पहले समझ लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब मैंने यहाँ पे एक चार्ज लिया, point, this is my point B and this one is my point A, and from at the point B I have taken a big charge, capital Q means what? Q is what? It is my source charge, don't forget source charge। बहुत explain किया है मैंने source charge के बारे में। Now at point A I have taken some small amount of charge, let that charge is +1 coulomb, +1 coulomb। Now what is +1 coulomb? Tell me what? It is called test charge। +1 coulomb, it is known as test charge। ये क्या कहलाता है? आपका कहलाता है टेस्ट चार्ज। Now this +1 coulomb is test charge। If you want, you
small q and you can write it as capital Q is very greater than small q. अब यहाँ सवाल उठता है ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हम बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन की, करने के बाद हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा Q का वो इसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। +1 कूलम शुड नॉट डिस्टर्ब द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपिटल Q, दैट इज कॉल्ड द सोर्स चार्ज। दैट इज व्हाई द चार्ज प्लेस्ड एट द पॉइंट A, the charge placed at the point A should be sufficiently low in comparison to capital Q, that is called source charge. The charge placed, once again I am repeating, the charge placed at the point A should be sufficiently small value, should have a sufficiently small value in comparison to the source charge, so that the electric field of source charge is not disturbed by the discharge. आ रही बात समझ में? अब देखो यहाँ पे अब तुमको समझना है, क्या समझना है, ये पॉइंट B पे जो सोर्स चार्ज है इसका पूरे रेंज में इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट A पर यू वांट टू प्लेस द चार्ज +1 कूलम। Now what will happen? You know the Coulomb's law of attraction or repulsion. What it will do, that since it is a positive charge, this is also a positive charge, so there will be a force of repulsion. होगा? It means once you bring the charge at the point A, whenever you bring the charge at the point A, it means what? You have to give sufficient amount of energy to this test charge, so that this charge is able to resist the repulsive force of the source charge. Are you getting my point? मैं क्या कह रही हूँ कि इस चार्ज को, जो कि हमने क्या माना है, इसको टेस्ट चार्ज है, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है टेस्ट चार्ज, और ये हमने क्या लिया है, सोर्स चार्ज। देखो यहाँ समझ लो, एक बार समझ लेने से पोटेंशियल पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट आई एम टेलिंग, दैट सिंस you even after the presence of repulsive force, of the source charge, you still want to place the test charge at the point A. Now just imagine how does it possible, because it will constantly applying the repulsive force. So due to this repulsive force, the +1 coulomb will go away from the electric field. Definitely it will go, because capital Q is very much greater than 1. It is very much greater than +1 coulomb. So this will exert a sufficiently efficient force on the +1 coulomb charge. But we want to stay. हम यहाँ रुकना चाहते हैं, तो कैसे रुकेंगे? We have to provide certain amount of external energy. हमें क्या करना होगा, हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी इसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। कहाँ से? तो एक्सटर्नल एजेंसी से। कहाँ से करना पड़ेगा? तो वी हैव टू सप्लाई अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। अब ये अमाउंट ऑफ एनर्जी आता कहाँ से, इसको समझ लो। इस चार्ज +1 कूलम को इन्फिनिटी से पॉइंट A तक लाने में हमने जो वर्क डन किया है, क्या किया है, वर्क डन किया है, क्या किया है, वर्क डन किया है। क्यों किया है? अगेंस्ट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके अगेंस्ट किया है? वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने किया है, ठीक है। इसका मतलब जो वर्क डन हमने किया है वो इसके फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में किया है। मतलब अगर हम मान के चलते हैं कि वो वर्क डन मेरा क्या है, F एक्सटर्नल है, क्या है, F एक्सटर्नल है, तो ये -F एक्सटर्नल जो है वो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के बराबर है। और ये बात समझ में, इलेक्ट्रिक फील्ड F क्यों हो जाएगा, तो देख लो हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है F/Q। तो अगर Q की वैल्यू 1 हो जाए तो E बराबर क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। When Q is equal to 1, समझ रहे हो सारे लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल एंड अपोजिट। अब जरा ये सोचो, अपोजिट तो चलो ठीक है, समझ में आ रहा होगा सबको, क्योंकि वो रिपल्सन कर रहा है, हमें नहीं जाना, हमें वहाँ स्टे करना, तो हम उसके अगेंस्ट काम करेंगे, इसलिए अपोजिट हो। इक्वल की बात मैं क्यों कर रही हूँ, इक्वल की बात मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज कि अगर अनइक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स यू विल प्रोवाइड, इन दैट केस द चार्ज विल फॉलो द एक्सेलरेटेड पाथ।
चार्ज, द मोशन ऑफ चार्ज विल बी एक्सेलरेटेड। हमें चार्ज को एक्सेलरेशन नहीं देना है, हमें चार्ज को एक्सेलरेशन नहीं देना है। वी हैव टू प्रोवाइड ओनली दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, we have to provide only that much amount of energy with the help of which the charge is able to maintain its position at the point A। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये है कि टोटल फोर्स जो A पे लगेगा, जो टोटल फोर्स A पे लगेगा, वो एक पे टोटल फोर्स कितना होगा? तो जीरो होगा। कितना होगा? जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि F एक्सटर्नल की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की डायरेक्शन क्या है? दोनों तो इक्वल एंड अपोजिट है, तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। तो अब क्या होगा कि उस एक्सटर्नल फोर्स की मदद से चार्ज विल एबल टू ट्रेवल द डिस्टेंस फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट A, एंड दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन, कुछ तो वर्क डन किया हमने। कितना किया? तो हमने मान लो कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस हमने कवर किया, तो W बराबर हम ले लेते हैं माइन F एक्सटर्नल इंटू dr। अब ये कहाँ से कहाँ तक तुम आए हो? तो तुम आए हो इन्फिनिटी से पॉइंट A तक, इतना आपने वर्क डन किया और ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के निगेटिव जा रहा है। तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन जो तुम्हारा आ रहा है, ये कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन आ रहा है? W इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर माइनस F एक्सटर्नल इंटू dr। वर्क डन क्या होता है बच्चों? बताओ। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमने यहाँ पे फोर्स लिया और यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट लिया, उसको इंटीग्रल कर दिया, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में हम बांट रहे हैं। पहले एक स्मॉल सा फ्रैक्शन लिया dr, और सारे dr को हम कंक्लूड करेंगे तो हमारा एक पॉइंट तक आ जाएगा। तो हमने इंटीग्रल ले लिया। ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन कहाँ करना पड़ा? चार्ज को लाने के लिए। कहाँ से लाने के लिए? तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए। तो दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज प्लस वन। आई बात समझ में? बहुत इफेक्ट है। दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एट द पॉइंट A। चलो डेफिनेशन लिखते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा सबों को। Electrostatic potential energy, it is defined as the amount of work done, as the amount of work done in bringing a unit positive test charge from infinity to the point inside the electric field of some source charge. आई बात समझ में? इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एंड रिप्रेजेंटेड बाय यू से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय यू। It is defined as the amount of work done in bringing a unit positive test charge from infinity to the point inside the electric field of some source charge। मैं पहले ही बोल रही हूँ कि हमें उस पॉइंट पे लाना जहाँ पे कि ऑलरेडी सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, क्योंकि तभी रिपल्सन होगा, तभी जरूरत पड़ेगी। अगर कहीं किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहता। फर्स्ट चार्ज को लाने के लिए कोई मदद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बट माई पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? W इज इक्वल टू वाट? माइनस F एक्सटर्नल जो है आपका वो किसके बराबर होता है? तो E के बराबर होता है इंटू dr। और ये कहाँ से आ रहा है आपका? इन्फिनिटी से आ रहा है A तक, और यही स्टोर हो जाएगा किस फॉर्म में? U। वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखो, अगर आप कोई पूछ दे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आ जाए तो हम कुछ नहीं करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को मैंने टॉपिक को चेंज किया,
what do I write? I will write as potential energy difference. Potential energy difference. देखो अब क्या करते हैं, क्या लिया था, डिस्चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट. अब इसको करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट to the other, from one point to the other point inside the electric field of the some source charge. और यहाँ infinity को मिटा करके हम लोग क्या लिख देंगे, we will write it as B to A. और कहाँ था, हमने पहला डायग्राम ड्रॉ किया था, A से ला रहे थे. Is that okay? So this is about the potential energy, जो कि आप मेजर कर पाएंगे एनर्जी के टर्म्स में कितना आपको वर्क डन करना पड़ रहा है. मैं पुनः एक बार रिपीट करती हूँ कि you have to give only that much of force to the test charge so that it is able to overcome the repulsive force of the source charge. Only that much amount of force should be supplied to the test charge so that it is able to shoot out the repulsion of the source charge. But the motion should be non-accelerated motion. You cannot provide a very huge amount of force and it will be under the acceleration. No. And that amount of work done is stored in the form of potential energy. What is known as potential energy? यहीं से आता है आपका टर्म potential. कहने का मतलब ये है कि अगर हर जगह पे रहने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. और वही उस पॉइंट का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. द टॉपिक फॉर टुडे दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. होप यू हैव रिटन द डेफिनेशन एंड इट इज इम्पोर्टेंट. दिक्कत हो तो आप पॉज करके यू कैन फॉर्मूला व्हिच आई हैव डन ऑन द रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, सॉरी इट इज व्हाइट बोर्ड. ओके, नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसको जरा समझ लो. वहीं से आया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या था. हाँ देखो, मैंने एक बात अभी नहीं उस समय क्लियर. पोटेंशियल एनर्जी में क्या आ गया, वर्क डन आया. वर्क डन क्या है, वर्क डन मेरी स्केलर क्वांटिटी है. इसलिए मैंने शुरू में ही बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है, इट इज स्केलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. आपने देखा कि जो आपका एक एक्सटर्नल था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के माइनस के बराबर आ रहा है, निगेटिव के बराबर आ रहा है. और चूंकि W क्या होता है, वो आपका होता है स्केलर क्वांटिटी. सो इट इज अ स्केलर रिप्रेजेंटेशन. लाइक द सेम वे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज ऑल्सो द स्केलर. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी. अब मान लेते हैं we have the 2 points A and B. Anywhere you can draw, no problem, in a straight line, in a curved line. So I want to go to the okay. So we have the two quantities, 2 points A and B. We have 2 points A and B, and we want to reach the point B from A. So we can choose this way, this path. With the path number 1. Now let this is the path number 2. Okay, and this one is the path number 3. So this is the 3 various ways I have drawn to reach the point B from the point A. A point से B तक पहुंचने के लिए 3 तरह के रास्ते हमने सेलेक्ट किए हैं. Now electrostatic potential does not depends upon the path chosen. आप किस पाथ को चूज करते हो उस पर डिपेंड नहीं करता है. क्यों नहीं करता, बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. जो स्केलर क्वांटिटी है उसको रास्ते से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस लेकर के चलता है. वो कितना है हमारा, तो ए से बी का कुछ डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज DR या AB कह देंगे उसको, उस लेंथ को, और ये उस पर डिपेंड करेगा. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ. चाहे आप इस रास्ते से घुमा के ले जाओ, इधर से ले जाओ, उससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ता है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये एक स्केलर क्वांटिटी है. दूसरा हम क्या लिखेंगे, इट डज नॉट डिपेंड, does not depend upon the path chosen. ठीक है, अब देखिए थर्ड पर ये होता क्या है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन. ये क्या है, तो उस पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन है. इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. क्या मतलब है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. और इसको रिप्रेजेंट करते हैं V से.
रिप्रेजेंटेड बाय v, अभी एक्सप्लेन करते हैं इसको, रिप्रेजेंटेड बाय v। दिमाग में अगर v क्यों है, क्योंकि ऐसा यूनिट होता है इसका वोल्ट, यूनिट होता है क्या, वोल्ट। तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं v, ठीक है। अब देखो ये हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। Now let us suppose we have the charge q. Let us suppose we have the charge small q. Okay. Now at the point A, in bringing q to point A, वर्क डन कितना है, वर्क डन इज WA, ठीक है, कोई डाउट नहीं। Q को लाने में WA है, तो 1 को लाने में कितना करना पड़ेगा बताओ, WA by Q। सिमिलरली इन ब्रिंगिंग Q to point B, the work done is QB, sorry, WB, yes, WB। therefore 1 को लाने में कितना करना पड़ेगा, WB by Q। alright, now WB by Q is amount of work done in to bring the charge to the point B, और WA by Q क्या है, तो A तक लाने के लिए। सो डिफरेंस इन वर्क डन कितना होगा बताओ, सो डिफरेंस इन वर्क डन therefore difference in work done in carrying unit charge is कितना होगा बताओ, it will be WB minus WA divided by Q। आई बात समझ में, this is called potential। this ये क्या कहलाता है, तो यही कहलाता है आपका पोटेंशियल। आई बात समझ में सबको, क्या है ये, it is the difference in work done in bringing the unit positive test charge from one point to another point। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, WB by Q minus WBA by Q। और इधर देखो, इधर क्या लिख सकते हैं, इधर हम लिख सकते हैं VB minus VA। क्या लिख सकते हैं इधर हम लोग, VB minus VA। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला है और ये भी आपका फॉर्मूला है। गॉट इट। सो VB minus VA is equal to WB by Q minus WA by Q। तो यहाँ से देखिए WB minus WA क्या है, चेंज इन वर्क डन। व्हाट इट इज, इट इज चेंज इन वर्क डन। तो चेंज इन वर्क डन को क्या कहते हैं हम लोग, जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। और कूलम की यूनिट, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, जूल पर कूलम। जूल पर कूलम इज आल्सो नोन एज वोल्ट। जूल पर कूलम को ही हम लोग वोल्ट भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का यूनिट क्या हो गया, ऐसा यूनिट ये हो गया आपका वोल्ट। सो दिस इज अबाउट द, नाउ देखो यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करोगे, ओके। सो दिस इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ये हमने क्या किया यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो व्हाट इज दिस, एसआई यूनिट क्या आ गया आपका, एसआई यूनिट आता है ये आपका जूल पर कूलम, एंड दिस इज नोन एज वोल्ट। याद रखेंगे इसको, दिस इज नोन एज वोल्ट। और हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, WA, अच्छा ये पता दो, इसको लिख सकते हैं WA by Q। ये हमारा आया था ना WB minus WA by Q, ये आया था ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, WAB by Q। और WAB को हम क्या लिख सकते हैं, UAB, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल होगा। अरे बात समझ में, दिख रहा है लिंक अप, यही है ना फॉर्म जो हम लोग करते हैं,
तो ये सेम ही है आप लोगों का, और ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया आपका VB माइनस VA के बराबर। ऑलराइट, अब नाउ सपोज A इज एट इंफिनिटी, मान लो कि A जो है वो इंफिनिटी पे है, तो एट इंफिनिटी VA इज इक्वल टू 0। क्या होता है ये, 0 के बराबर होता है। इंफिनिटी पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 0। तो 0 हो गया, तो नाउ सब्स्टिट्यूट इट हियर, सो व्हाट विल बी हियर, इट विल बी VB माइनस 0 हो गया, तो 0 खत्म, दैट इज इक्वल टू WAB/Q। चलो अब यहाँ से डेफिनेशंस पे आते हैं। आई बात समझ में सबको कि A को हमने क्या लिया, इन्फिनिटी पे ले लिया, तो इन्फिनिटी पे A की वैल्यू कितनी होती है, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है इन्फिनिटी पे, तो वो होती है हमारी 0। पोटेंशियल की वैल्यू इन्फिनिटी पे होती है 0, सो VB माइनस 0 इज इक्वल टू WA/Q। देखो डेफिनेशन तो ऑटोमेटिक बन रहा है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, या देखो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने कहा था कि जो वी हैव टू टेक ओनली द force equal to the electric field force applied by the electric force। so कहने मतलब कि हमें एक्सेलरेशन नहीं देना है, तो हमें एक्सेलरेशन नहीं देना है, तो वो तो सबसे मिनिमम फोर्स हुआ, तो मिनिमम फोर्स हुआ तो वर्क डन भी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो हम इसको जोड़ देते हैं, क्या जोड़ेंगे, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन। चलो देखो लिखते हैं हम लोग क्या है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन, देखो क्या पोटेंशियल it is defined as the minimum amount of work done in bringing a unit positive test charge from infinity to that point। ये हो गया पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल है, ये है मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऑलराइट, नाउ व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर यहाँ क्या करेंगे, फ्रॉम इन्फिनिटी की जगह पे हम कर देंगे, देखो एक ही डेफिनेशन याद करना है, बहुत ज़्यादा डेफिनेशन याद नहीं करने, बस चेंजेस करनी। इट इज अमाउंट ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम, यहाँ इन्फिनिटी लिखा था, हम यहाँ लिख देते फ्रॉम वन पॉइंट टू दैट पॉइंट की जगह लिख देते हैं अनदर पॉइंट, टू अनदर पॉइंट। आई बात समझ में, यही है तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये है क्या, W/Q, और W कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। सिंस इट इज स्केलर क्वांटिटी सो इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो क्या कहोगे कि पोटेंशियल इज पाथ इंडिपेंडेंट, पोटेंशियल इज पाथ इंडिपेंडेंट। Okay, so potential is path independent, and this is the definition of potential difference and potential. So we have altogether I think till here 2 to 3 formulas, and you must remember these things. And after that I am going to drive the formula for potential at a point. Potential at a point due to a point charge, due to a single charge. So क्या क्या अभी हमने देखा, we have seen WAB, I mean UAB, that is change in potential energy, and this is equal to what? This is equal to WAB, I mean work done, and this is what? This is equal to minus FE into dr, where FE क्या है? FE is equal to minus of F external। ये दोनों का डायरेक्शन जो होगा वो आपस में अपोजिट होगा। क्लियर दिस थिंग, यहाँ तक एक आ गए हम लोग। और दूसरा हमने क्या देखा कि VAB ये क्या होगा, तो VAB हो जाएगा आपका WAB/Q, WAB/Q यही है आपका। दिस वन इज द पोटेंशियल एनर्जी
point and this is for your potential. Okay students, is that okay? तो यहाँ से अगर तुम लोग चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ कंबाइन करके कि VAB इज इक्वल टू 1/q कर दो, -1/q और यहाँ हो जाएगा आपका FE वेक्टर लगा। ठीक है, डन। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो कितनी होगी उसको हमको निकालना है। तो क्या निकालेंगे, टॉपिक क्या है अभी, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, बहुत सिंपल है, तुरंत निकल जाएगा आप लोगों का। पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज, ठीक है, ओके डन। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, लेट अस सपोज दैट दिस इज योर ओरिजिन O, at the O you have kept the charge Q, you have to find out the potential at the point P। टारगेट क्या है तुम्हारा, टारगेट है पोटेंशियल एट द पॉइंट P इज इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है, Vp इज इक्वल टू व्हाट। अब सिंस पोटेंशियल इज द पाथ इंडिपेंडेंट, पोटेंशियल क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। जब ये पाथ इंडिपेंडेंट है तो हमें इसके डायरेक्शन से, इसके पाथ से कोई मतलब नहीं है, तो हम सबसे कन्वीनियंट पाथ लेंगे। कन्वीनियंट पाथ क्या होगा, तो रेडियल पाथ। अब रेडियल पाथ का क्या मतलब है, तो निकालने के लिए हम लोग पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पॉइंट P पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेना पड़ेगा। हर समय यही लेते हैं, वी टेक ओनली यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट द पॉइंट P। नाउ सिंस दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज आल्सो द पॉजिटिव चार्ज, व्हाट विल हैपन, इट विल एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ रिपल्सन, सो इट विल मूव रेडियली आउटवर्ड। क्या करेगा, ये रेडियली आउटवर्ड करेगा। अब लेट अस सपोज that the position between O and P is R, ये क्या है, इसके बीच का पोजीशन कितना है, तो R है। ये इसको क्या करेगा, तो रिपेयर करेगा, दूर फेंकेगा। बट हमें क्या करना है, हमें पॉइंट P पे इसको लाना है। अब इस पॉइंट P पे लाके प्लेस करने के लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज आवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसको हम करेंगे कैसे, तो देखो काफी सिंपल है। सबसे पहले तो पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालने के लिए हम कंसिडर क्या करते हैं कि वी आर ब्रिंगिंग द चार्ज, वी आर कैरिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, अब किसने देखा इन्फिनिटी को, वी डोंट नो इन्फिनिटी कहाँ है, नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे, वी टेक वन पॉइंट नियरर टू इन्फिनिटी, आई मीन उससे थोड़ा नजदीक पे लेंगे और लेट दैट पॉइंट इज ए। थोड़ा इन्फिनिटी से नीचे आओ, उतना ऊपर जाने की जरूरत है, इन्फिनिटी से नीचे आओ, तो ये पॉइंट हो गया हमारा ए। अब इस पॉइंट ए की पोजीशन कितनी है, तो ये है हमारी एक्स। पॉइंट ओ से कितना है, तो x डिस्टेंस है। अब हमें क्या करना है कि मान लेते हैं कि हम x से यहाँ से कैरी कर रहे हैं, यानी कि a डिस्टेंस से हम चार्ज को कैरी कर रहे हैं। इन a से b तक आने में ड्यूरिंग द पाथ कवर्ड फ्रॉम द पॉइंट a टू p वी टेक वन इंटरमीडिएट पॉइंट बिटवीन AP के बीच में एक पॉइंट लिया हमने, कौन सा, उसका नाम दे दिया मैंने b। आ रही बात समझ में सबको, देखो कुछ नहीं करें, निकालना क्या है, तो निकालना है कि कोई जो पॉइंट पोटेंशियल कब काम करेगा, जब आप कोई पॉइंट जो है वो किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। अब वो चार्ज कौन सा लिया हमने, Q लिया। Q की लोकेशन क्या है, O है। क्लियर दिस थिंग। नाउ वी वांट टू प्लेस द चार्ज एट द पॉइंट P। कहाँ पे प्लेस करना चाह रहे हैं, P पॉइंट पर, ये तुम्हारा P पॉइंट। बस सिचुएशन समझ लो, आंसर अपने आप आ जाएगा। डेरिवेशन में कुछ भी नहीं रखा है, एक सिंपल इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगाएंगे और रिजल्ट आ जाएगा, बस क्वेश्चन को समझना है। तो पॉइंट P पे हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। तो जहां पे पोटेंशियल निकालना है तो सबसे पहले हम वहां पे क्या करना चाहते हैं, एक्चुअली वी वांट टू प्लेस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज देयर, यही कर सकते हैं। तो 1 कूलम के चार्ज को हमने वहां पे लाके रखा। अब यहाँ तक लाने में 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है वो कहाँ से चलेगा, इन्फिनिटी से। That is the from definition, amount of work done in bringing the charge from infinity to that point inside the electric field of some other charge। यही है ना डेफिनेशन। अभी तुरंत 2 मिनट पहले आप लोगों ने दिखाया उसको। तो इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, we can say that W infinity P W infinity P, वही उसका होगा क्या, वही that will be the potential at the point P। अब चूंकि इन्फिनिटी जो है इट इज अ वेक्टर, आई मीन इन्फिनिटी किसने देखा,
कहाँ है नहीं है, क्या डिस्टेंस हम उसको कंसिडर करेंगे। तो इसके लिए व्हाट वी डू, वी टेक सम पॉइंट अवे फ्रॉम द पॉइंट P एंड लोअर टू द इंफिनिटी, लोअर टू द इंफिनिटी। उस पॉइंट का नाम मैंने क्या दिया, A। ना A की लोकेशन पॉइंट O से कितनी है, तो x डिस्टेंस पर है। अब हम क्या निकालेंगे, A से लेकर के P तक की जो वर्क डन है हम उसको कैरी आउट कर लेंगे और दैट विल बी आवर रिजल्ट। अब चूंकि डायरेक्ट तो डिस्टेंस इज अननोन, सो व्हाट वी डू, वी परफॉर्म द वर्क इन अ फ्रैक्शन और फिर बाद में सबको इंटीग्रेट करेंगे। तो लेट दैट फ्रॉम A to B द डिस्टेंस इज dx, A to B के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो dx है, ठीक है। तो A से B तक लाने में जो वर्क डन हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको फाइंड आउट कीजिए। पहले क्या करेंगे हम लोग, A से B तक लाने में जो वर्क डन है पहले उसको देखते हैं। तो पहले आगे नहीं बढ़ते, बस उतना पे आते हैं। WAB, तो वर्क डन होता क्या है ये बताओ, तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट है तो क्रॉस मत दो, डॉट ही दे दो, चलो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ये फोर्स कौन सा होगा, एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा। कौन सा होगा, एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा। अब ये एक्सटर्नल एजेंसी का जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स से क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट। यही है कंसेप्ट, देख लो ये क्या होता है, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस FE, ये जानते हैं हम लोग। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, यहाँ कर दिया FE, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dx, डॉट प्रोडक्ट है सबका। अब चलो, अब क्या करोगे, तो इस फोर्स की वैल्यू निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, चलो निकालते हैं फॉर्मूला से। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, E वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, F वेक्टर बाय Q, मालूम है ना सबको। तो आप देखो ये Q की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो E वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, F वेक्टर। आई बात समझ में। अब देखिए मैं इसको रब कर रही हूँ, E वेक्टर इज इक्वल टू किसके आ गया, F वेक्टर। अब निकालो कूलम्ब फोर्स कितना होगा, ये डायग्राम अभी नहीं मिटाएंगे बिकॉज आई नीड दिस थिंग। सो चलिए यहाँ देखते हैं, तो F इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो 1/4πε0 इनटू Q1 Q2 बाय Q1 आता है। तो ये तो 1 खत्म हो गया, बचा क्या R²। तो अब देखो R² की जगह तुम क्या दोगे, OA², क्या दोगे, OA²। तो OA² क्या होता है भाई, R²। OA² क्या होगा, P नहीं लेना है, अभी P तक आई नहीं ऑब्जेक्ट, ये बात याद रखो। चार्ज अभी P पर आई नहीं है, अभी चार्ज कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, X पॉइंट पर। चार्ज इस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे कर रहा है, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम उसको कंसीडर करेंगे। तो वो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है, Q/R²। आई बात समझ में सबको। अब देखो तो WAB की वैल्यू क्या हो गई, माइनस को बाहर करो, 1/4πε0, Q को भी बाहर कर दो, ये आ गया तुम्हारा dx/R²। अब ये जो W है इट इज फ्रॉम A to B। हमें क्या चाहिए, हमें टोटल वर्क डन चाहिए। कहां तक लाना है, हमें P तक लाना है। कहां तक लाना है, P तक लाना है। स्टार्ट कहां से करनी है, इन्फिनिटी से। स्टार्ट कहां से करनी है, इन्फिनिटी से, यानी कि हमारा ये दोनों ही लिमिट शिफ्ट होने वाला है। समझ रहे हो बात को, A पॉइंट शिफ्ट होकर चला जाएगा इन्फिनिटी पे और B पॉइंट शिफ्ट होकर कहां आएगा, P पे। तो हम आप क्या करेंगे, टोटल वर्क डन निकालेंगे। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ओवर WAB। कहां से लाने हैं, इन्फिनिटी से। कहां तक लाओगे, पॉइंट P तक। पॉइंट P की लोकेशन क्या है, जल्दी बताओ। पॉइंट P की लोकेशन है R। पॉइंट P की लोकेशन क्या है, R है। तो इन्फिनिटी से R तक लाने में जो वर्क डन हुआ दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। यही होता है ना पोटेंशियल का डेफिनेशन। तो ये जो वर्क डन होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। आ गया फॉर्म पे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट ही लिया है, अभी यहाँ पे इसको लाके यहाँ पे रखे थे टेम्पररीली। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट दैट इज नोन एज पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट। आ रही बात समझ में सबको। तो चलो देखते हैं।
अब देखो, अब कुछ नहीं करना, डायग्राम आप लोग देख लीजिए ठीक से, आपने आई होप कि आपकी कॉपी में होगी। ये 0 पे मैंने Q रखा है एट द पॉइंट P which is at the distance R from the center O and this is another point A and B। A and B जो है वो आर्बिट्रेरी पॉइंट है, A and B टोटली हाइपोथेटिकल है, वो हम सपोज करके चल रहे हैं। अरे बात समझ में? तो देखो यहाँ पर ये हो गया मेरा पार्ट 1 है, अब मैं यहाँ पे पार्ट 2 कर रही हूँ। चलो पार्ट 2 में देखिए क्या हो रहा है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो व्हाट इज V? V इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर इंफिनिटी टू R WAB। अब काफी सिंपल है, देखो इंफिनिटी से R तक ले लिया। अब देखिए WAB की वैल्यू क्या है, WAB की वैल्यू है -Q/4πε0 dx अपॉन R², यही है ना? आ रही बात समझ में? ओके देखो dx अपॉन R² नहीं होगा, x² होगा। पॉइंट A की लोकेशन जो थी वो क्या थी, x थी। देखिए यहाँ मिस्टेक हो गई, पॉइंट A की लोकेशन x थी हमारी, R तो पॉइंट P है, R पॉइंट P है। चलो ठीक कर लो सारे लोग, ये x² होगा। आई बात समझ में? अब चलिए यहाँ पे देखो कांस्टेंट क्या क्या है, तो Q/4πε0 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो, -Q/4πε0 एंड दिस विल बिकम dx अपॉन x²। इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन x² को x⁻², क्या लिख सकते हैं इसको, x⁻² into dx। देखो यहाँ पे मैंने करेक्ट किया है, आप लोग भी अपने अपने नोटबुक में करेक्ट कीजिए। R² नहीं ले सकते, R² जो है पॉइंट P का लोकेशन है, पोजीशन वेक्टर है, लेकिन चार्ज हमने कहाँ माना था, A पॉइंट पर, और A पॉइंट कितने पे था, तो x डिस्टेंस पे था, OA वाज x। तो यहाँ लिख देते हैं, चलो OA इज इक्वल टू x, OP इज इक्वल टू R एंड AB इज इक्वल टू dx। ये तीन ही है आपका पोजीशन। तो यहाँ पे अब आगे आप फॉर्मूला लगाइए, x⁻n का इंटीग्रल क्या होता है, तो ये होता है x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1, तो -Q/4πε0, ये हो गया आपका x⁻2+1 -2+1। आरी बात समझ में? कोई नहीं, एक फॉर्मूला लगाएं, याद है फॉर्मूला? नहीं याद है? चलो देखो फिर से क्या है, फॉर्मूला नहीं याद है तो देखो यहाँ पे ये है फॉर्मूला आपका, x⁻n dx का इंटीग्रल होता है x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1। आई होप अब याद आ गया होगा, यही है फॉर्मूला। चलो हो गया, तो अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करिए इसको फटाफट से। डन। क्या हो गया भाई बताओ, v इज इक्वल टू -Q/4πε0। यहाँ देखो क्या क्या होगा, ये हो गया -1, ये आ गया -1 और ये हो गया आपका x⁻1। आराम में एकदम आराम से देखो, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी भी नहीं है कुछ भी, आराम से समझिए। ये हो गया -1 और ये हो गया डिवाइडेड बाय -1। ओके, इस -1 और इस -1 को देख के कुछ लग रहा है, क्या लग रहा है मैम, पॉजिटिव हो जाएगा और क्या, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू Q/4πε0। अब देखिए क्या छोड़ा हमने, हमारा लिमिट क्या था, इंफिनिटी टू r, वी आर टेकिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू r। चलो चलो डालते चलो सब जगह इंफिनिटी टू r। तो अब ये आ गया हमारा 1 x⁻1, उसको क्या लिख सकते हैं, 1/x, x⁻1 इज इक्वल टू 1/x, 1/x। कहाँ से कहाँ तक, इंफिनिटी टू r तक। आई बात समझ में? अब देखो तो क्या होगा, ऐसा हो गया। चलो रब करते हैं, फाइनल एक्सप्रेशन है, आराम से लिखेंगे, पूरी जगह देंगे इसको। चलो डन डन डन, ये भी हो गया। ओके ओके डन। चलिए इस टॉपिक तो आप समझ ही गए क्या टॉपिक है, चलो समझ आती है, क्लियर कर लो, लाइन क्लियर है पूरा। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, Q/4πε0 1/x, तो इट इज इक्वल टू 1/r माइनस 1/infinity। 1/infinity क्या होता है जल्दी बताइए, 1/infinity इज 0, 1/infinity इज व्हाट, दिस टर्म्स बिकम 0 इक्वल टू 0, सो v इज इक्वल टू Q/4πε0 into r, a very important formula। v इज इक्वल टू व्हाट, Q/4πε0 r। तो यहाँ से देखो क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, सिमिलैरिटी दिख रहा है, v जो है वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
भी क्या है, आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन इलेक्ट्रिक वेक्टर जो था वो आर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। आई बात समझ में? देखो यहाँ पे दोनों देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्या आप याद रखेंगे, कंक्लूजन ये याद रखोगे कि फॉर वेरी हाई डिस्टेंस, फॉर वेरी लार्ज डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज डिकेज फास्टर देन द पोटेंशियल। आई बात समझ में? क्योंकि वो स्क्वायर के रेट में होगा और ये सिंपल 1/, जस्ट सपोज आर इज 2 से चेंज हुआ तो इट विल बी चेंज बाय हाफ, बट दैट विल बी चेंज बाय 1/4। अंतर समझ में आ रहा है? अगर 2 यूनिट पोजीशन वेक्टर को हम चेंज करते हैं तो पोटेंशियल कितने से चेंज होगी? पोटेंशियल चेंज होगी 1/2 से, यानी वो हाफ हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 1/4 होगा। कितना होगा? 1/4 होगा। तो अगर वेरिएशन देखना हो तो आप ऐसे कर लीजिए, v हो गया ये आपका, ये हो गया r, और ये हो गया मेरा पोटेंशियल का वेरिएशन। पोटेंशियल का वेरिएशन क्या लिखे इसको? वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ, एरो दे दो भाई, एरो जरूरी है। वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ठीक है ना? और लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो ये भी हो गया ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो इसको थोड़ा सा और नीचे हायर डिस्टेंस पे ये जो गैप है ये बहुत ही प्रोमिनेंट होगा। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक वेक्टर का, ये इलेक्ट्रिक का हो गया और ये पोटेंशियल का हो गया, ठीक है? ये वेरिएशन का आपका ग्राफ है। अभी और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट देखना है इसमें, चलो देखते हैं क्या है। यही फॉर्मूला है जिसको हमें ध्यान में रखना है और सारी बातें करेंगे हम लोग पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल क्या आ गया मेरा? v इज इक्वल टू q/4πε0 इंटू r। क्लियर दिस थिंग? अब बताओ यहाँ कुछ भी वेक्टर दिख रहा है तुम लोगों को? नहीं दिख रहा है। ये क्या ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया? ये आपका हो गया स्केलर टर्म। अब इफ q इज पॉजिटिव मीन्स दैट इज q इज ग्रेटर देन 0। अगर q 0 है, q से 0 से ग्रेटर है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, द चार्ज इज पॉजिटिव, देन द पोटेंशियल विल बी, यानी v प्लस लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? q पॉजिटिव आ गया, 1/4 पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफ q इज नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव का मतलब क्या होता है बताइए? q इज लेस देन 0, तो क्या लिखेंगे? v माइनस को क्या लिखेंगे? q माइनस है ना, तो नेगेटिव ऑफ q रखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो माइनस हो जाएगा। अब बताओ कौन सा ज्यादा है? v प्लस ज्यादा है या v माइनस ज्यादा? अगर चार्ज की अमाउंट सेम तो क्या कहोगे कि v प्लस इज ग्रेटर देन v माइनस। v प्लस क्या होगा? वो v माइनस से ग्रेटर होगा, दैट इज v plus is greater than v minus. It means what? Potential of positive charge is greater than the potential of negative charge. That is why charge flows from higher potential to lower potential. कनेक्ट मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पढ़ा था ना करंट में, क्लास 10 में, कि प्लस v प्लस इज ग्रेटर देन v माइनस। कहने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज इज एट higher potential than the negative charge। आई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो इस फॉर्मूला को हमेशा क्या। So we have discussed the potential due to a single charge. Now what will happen if there are a group of charges? अगर ग्रुप ऑफ चार्ज है देन व्हाट वी कैन डू, आई मीन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इफ देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस एग्जिस्टिंग अराउंड अ पॉइंट। अगर एक पॉइंट के अराउंड बहुत सारे चार्जेस हो तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? बस वही निकालते हैं। वो था सिंगल चार्ज की वजह से, और अब निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। कुछ
नहीं, वेरी सिंपल, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। अब तो आप लोगों के दिमाग में घंटी बज रही होगी कि स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर में क्या करना पड़ता है। उस केस में जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की बात कर रहे थे और लार्ज नंबर्स ऑफ चार्जेस लेते थे, तो वी हैव टू डू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और पॉलीगन्स लॉ लगाना पड़ता था। यहाँ कोई जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं, काफी सिंपल और स्मूथ वे में चलेगा, क्योंकि स्केलर है और स्केलर का एडिशन क्या होगा, सिंपल एडिशन कर देंगे, V1 V2 V3 Vn, दैट इज ऑल। तो देखिए क्या है कि हम लोग क्या करेंगे कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट, टॉपिक क्या है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, ग्रुप ऑफ चार्जेस। अब देखो भाई, ग्रुप ऑफ चार्जेस का क्या मतलब होता है, ये देखिए, ये हम मैंने कोई पॉइंट लिया P, टारगेट क्या है, तो पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना। देखो क्वेश्चन का टारगेट जरूर पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं टॉपिक में। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्या देखती हूँ कि स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि करना क्या है, तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स उसको पढ़िए हेडिंग्स को, और ये सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए कि आपका डायरेक्शन क्या है, आपको किधर बढ़ना है। जब तक ये पता नहीं होगा कि हमें निकालना क्या है, हम क्या काम कर रहे हैं, तो कितनी भी रोट मेमोराइजेशन कर लो, बहुत सारी वीडियोस देख लो, हम लोगों जैसे टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स का वीडियो देख लो, कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला है जब तक कि तुम्हें खुद ये पता ना हो कि तुम्हें क्या करना है, क्या निकालना है, उस टॉपिक का मेन पर्पस क्या है। तो वो जानने के बाद ही आपका काम इजी होता है, और अगर आप वो जान जाते हैं तो काम काफ़ी इजी हो जाता है। तो देखिए हमारा टारगेट क्या है कि पॉइंट P पे हमें पोटेंशियल निकालना है। ये जब ये मिल जाएगा और सब्जेक्ट इज ओवर, मतलब वो पॉइंट वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो क्या कहा, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पॉइंट ले लिया ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, तो ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस है। इससे पहले वाले टॉपिक में क्या था, ड्यू टू सिंगल चार्ज, तो सिंगल चार्ज था तो O पे हमने Q पुट कर दिया था, लेकिन यहाँ ग्रुप है तो Q देने से काम चलेगा, नहीं चलेगा। व्हाट वी विल डू, वी विल राइट Q1 Q2 Q3 Q4 Qn सो ऑन। तो चलिए जहाँ जहाँ अच्छा लगे वहाँ वहाँ पॉइंट बना दीजिए, इट इज योर चॉइस। चलो बहुत बन गया। तो यहाँ हमने दे दिया Q1 चार्ज, यहाँ दे दिया Q2 चार्ज, यहाँ दे दिया Q3, दिस वन इज Q4। कोई जरूरत नहीं सिस्टमेटिक होने की, आप कहीं भी लिख सकते हैं। Q5 यहाँ लिखा ना, यहाँ पे लिख दो Q6, नो प्रॉब्लम। ये हो गया Q7, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बनाऊंगी, ये मेरा लास्ट है। Qn कर दिया मैंने, सो मैंने जितना आपको बनाना है आप बना लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो Qn मतलब nth नंबर है, n विल बी 10 20 100 40 90 10 to the power 10 जो है वो हो सकता है। अब देखिए, तो पॉइंट P पे हमें पोटेंशियल निकालना है। अब पॉइंट P का डिस्टेंस, पॉइंट, अब सारे पॉइंट्स का नाम दो, तो Q1 कहाँ है, A पे, Q2 कहाँ है, B, C, D, E, F, G, and this is N पॉइंट दे देते हैं, nth। सो सबके कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगी, फटाफट लिखते चलिए। ये हो गया R1, ये हो गया R2, दिस वन इज R3, दिस वन इज R4, R5, R6, सॉरी कैसे हो गया R6, ये Rn होगा, Rn, R7, दिस इज R6। समझ में आया, बहुत लंबा चौड़ा बन गया, मैम पता नहीं क्या हो गया। देखो कुछ नहीं किया है, सबसे पहले पॉइंट P ले लो, पॉइंट P ले लो जहाँ पे तुमको पोटेंशियल निकालना है, उसके चारों तरफ एक नेटवर्किंग कर दो, जाल लगा दो, किस चीज़ का, तो चार्जेस का, Q1 Q2 Q3 Qn सो ऑन, बना दिया। अब चार्ज बनने के बाद हर चार्ज की कुछ ना कुछ लोकेशन होगी, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा उस पॉइंट से, तो उसका नाम क्या दे दिया, R1 R2 R3। एकदम ईजी है, एफर्ट में नहीं पढ़ना। Q1 है तो पोजीशन हो गया R1, Q2 है तो पोजीशन हो गया R2, Q3 है तो पोजीशन हो गया R3, Qn है तो पोजीशन हो गया Rn। अरे बात समझ में। अब देखिए हमारे पास है फॉर्मूला V का, क्या है, Q/4πε0 R, ठीक है। अब चलो 1 by 1 निकालते जाते हैं। पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल तो होता ही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि हम किसी के फील्ड के अंदर जाके रहना चाह रहे हैं। ये वही बात हो गई कि तुम्हारे पास 2 रूम है तो एक रूम में जाके कब्जा करना चाह रहे हैं, वहाँ पे जाके हमें रहना है, कैप्चर करना है। सो लाइक दिस, पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू, यहाँ तो लार्ज नंबर है तो सबका लेना होगा, तो ड्यू टू चार्ज, पहले एक लेते हैं Q1, मान लेते हैं इसका पोटेंशियल का वैल्यू है V1,
वैल्यू क्या होगी बताओ? 1/4πε0 Q1 upon R1. So simple. Similarly, potential at P due to Q2 क्या होगा बताओ? V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q upon R2. निकालते चलना Q3, Q4, Q5, Q6. तो लास्ट वन क्या होगा? पोटेंशियल at P due to चार्ज Qn. इसको क्या लिखो? Vn लिख दो. 1/4πε0 Qn अपॉन R. आ रही बात समझ में? अब चलिए देखिए. Potential is a scalar quantity. So total potential at the point P is the sum of all the potentials. चूंकि potential क्या है? वो एक scalar quantity है. तो V is equal to क्या होगा? V1 plus V2 plus V3 so on. लास्ट में Vn. अब चलिए कुछ कॉमन आने की है चांसेस? यस ऑफ कोर्स. 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा. 1/4πε0. अब यहाँ क्या हो गया? Q1/R1. देखो कितना सिंपल है. फॉर्मेट देखिए सेम चल रहा है. कंफ्यूजन की बात ही नहीं है इसमें. सेम Qn तो Rn, Q1 तो R1. अब यहाँ हम क्या करेंगे? समेशन डालते हैं. 1/4πε0 समेशन ओवर. किसका समेशन करना पड़ेगा? देखो Q का क्या हो रहा है? Q1, Q2, Q3, Q4, Qn. R का क्या हो रहा है? R1, R2, R3, Rn. सबका समेशन करते हैं. ये हो जाएगा मेरा Qi/Ri. ठीक है? Where I is equal to 1 to n. यही तो है. वेरी सिंपल. देखो हो गया. आ गया एक्सप्रेशन आपका. It is the algebraic sum of all the charges. आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत तुम लोगों को? तो फाइनल एक्सप्रेशन जो आ रहा है चाहे वो सिंगल चार्ज की वजह से हो या ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से, इट इज ऑलवेज 1/4πε0 Q/R. If it is a group of charges, then put the summation sign. If it is a single isolated charge, then it will be simply Q/R. आ रही बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं. इसमें बस एक छोटा सा पॉइंट है 2 मिनट का. मैंने बताया था तुम लोगों को कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0. बताया था. कैसे बताया? देखो कैसे बताया. V की वैल्यू क्या आ गई? 1/4πε0 Q/R. Now if R is equal to infinity, मतलब पॉइंट कहाँ चला गया है? इंफिनिटी पे. पॉइंट इज शिफ्टेड टू द इंफिनिटी. देन V infinity is equal to 1/4πε0 Q/infinity. Now 1/infinity, since 1/infinity is 0, that means V at infinity is 0. एकदम याद रखोगे. The value of potential at infinity is 0. Is that okay? I hope you have understood the concept of electric potential and the potential due to a group of charges and the potential energy. If you like my video, then please like and subscribe my channel, my YouTube channel.